Hey, hi everyone. So I hope all are doing fine. So in this video, we'll be doing some number series pattern here. Okay, we'll learn how to identify number series pattern when there are few number series difficult patterns actually. See, the number series questions are basically important for OMIT's point of view. Exams like SNAP, NMAT, ZAT, IFT, and moreover, it becomes further important because most of the people, if they don't find a very common number series question in paper, they tend to leave it. Okay, so if you can identify and solve those 2-3 questions in the paper, you get a direct jump in percentile because other people will be leaving it. Okay, so from that point of view, it becomes a very important topic. So let's see how to solve few typical questions, little bit on tougher side also. Okay, how do you identify those pattern, and you can remember those pattern, they'll be very useful in these exams. Okay, let's start. See, like the first question here, this is a ZAT last some previous year question actually. Okay, so this is a question like 65, 76, 118, 128, 144, 153. Okay, now understand this. If you look at this series here, you can observe that this series is like not increasing or decreasing very fast. Okay, when a series increase or decrease very fast, it is kind of it is like connected to a multiplicative series, right? For example, if I have a series here, let's say 2, then 6, then 24, then 120, then 720, like that. So what I can identify from this series is that this series is increasing very fast. Increasing very fast. Okay, that means it has to something do with multiplicative series here. Multiplicative means कुछ ना कुछ multiply हो रहा होगा. For example, if you observe, यहाँ पे into 3 हो रहा है, यहाँ पे into 4, then into 5, then into 6, like that. Okay. So that's what I'm saying here. Basically the series is pretty, numbers are very close to each other, like 65, 76, 118. Okay. So here I should mostly go with difference. I'll try and go with difference here. Okay. Now, so if I go with difference here, so let's take difference here. So here the difference is 11. Here difference is 42. Here difference is 10. So let's observe also that from 65 to 76, how will you get difference of 11? Okay, so if you observe, you'll see that this 6 plus 5 is actually 11. Hai. Okay, fine. Then this 11 is added here. Then from 76 to 118 is I'm adding 42 here. So if you observe, how do you get 42 from 76? So if you observe, you'll get that 7 into 6 is equal to 42. 76 plus 42 is 118, right? Now 118 again, if you observe, now how do you get difference of 10 here? That is addition of these digits, 1 plus 1 plus 8. So 1 plus 1 plus 8 is equal to 10. Then 1 plus, then obviously one time what we have done. So here digits are added, here digits are multiplied, here digits are added, then it should be multiplied here. Now 1 into 2 into 8 is 16. So here I'll say 1 into 2 into 8 is 16. So now 16 is being added here. ठीक है ना? तो क्या हो रहा है, एक बार आप digits को add कर रहे हो, एक बार multiply कर रहे हो, and that difference we're adding every time. So from here again, so now the difference is 9 here. So how do you get that 9 here? 1 plus 4 plus 4, that is 9. So next time it should be multiplied. So 1 into 5 into 3 will be 15. So 153 plus 15, answer is 168. So 168 is the answer for this question. Okay. So basically, if you try to see these patterns here, and if you don't observe that it is sum of digits, it becomes very difficult actually. Okay, so basically when you find some random difference pattern, okay, okay, then you can actually think that it could be a sum of digits kind of series, right? You can just check with digits actually, because sum of digits series will be very random pattern, है ना? बहुत रैंडम पैटर्न होगा वो. एक बार 11 ऐड हुआ या एक बार कुछ और ऐड होगा, तो उसमें कुछ पैटर्न नहीं होगा. तो आपको अगर आप कहीं पे डिफरेंस देख रहे हो और आपको बहुत रैंडम पैटर्न मिल रहा है, कुछ अजीब, है ना, देन व्हाट यू कैन थिंक ऑफ लाइक लेट्स चेक विद सम ऑफ डिजिट्स एक्चुअली. ओके, and if you can see that series is increasing or decreasing very fast, so increasing or decreasing very fast, so in those cases you can see it to be a multiplicative series here. Okay, multiplicative series. That's how you can just remember few things, okay, to solve all the questions here. Okay, now let's look at question 2 here. In question 2 it says that it is 5, then it is 7, then 25, then 131, and then 8335. What you can see here, that series is increasing very fast. Okay, now this is what I was telling here. Increasing very fast, that means
इट हैज टू बी मल्टीप्लिकेटिव सीरीज, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा. सोचोगे 5 से 7 क्या मल्टीप्लाई होगा, इट कुड बी लाइक, आप सोचोगे या तो इंटू 1+2 हो सकता है. ठीक है, कुछ लोग और सोचेंगे कि भाई ये 5 से 7 कैसे आ सकते हैं कुछ मल्टीप्लाई होके, कैन थिंक लाइक इंटू 2 -3 भी हो सकता है लाइक दैट. तो ये आगे का पैटर्न कंफर्म करेगा. इफ आई मूव फ्रॉम 7 to 25 आई सी 7 इट इज क्लोजर टू इंटू 3. तो इफ आई सी इंटू 3 + 4, तो ये मेरे कुछ पैटर्न मिल रहा है राइट. ओके, सो बिकॉज देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. गेटिंग सम पैटर्न हियर. जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट ऑफ दिस वन यार. 25 से 131. So if I go from 25 to 131, I'll observe that it is into 5. 25 into 5 is 125 plus 6. Okay, that's the pattern I'm getting here. Okay, so into 1 plus 2, into 3 plus 4, into 5 plus 6. The next one should be into 7 plus 8. Okay, that's how it should be, into 7 plus 8, right? So 131 into 7 is equal to 917 plus 8 is 925. Now अब ये 7 8 भी हो गया. नाउ नेक्स्ट वन शुड बी इंटू 9 + 10. देखो हो रहा है क्या, 925 इंटू 9 इज 8325 एंड 8325 + 10 इज 8335. परफेक्टली फाइन, सेटिस्फाई करेगा, है ना. सो दैट्स द आंसर. ओके, सो हाउ आई स्टार्टेड विद इट कि भाई सीरीज ना बहुत फास्ट आपका इंक्रीज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रहा होगा, है ना. चलो लेट्स लुक एट फ्यू मोर क्वेश्चंस हियर. लुक एट क्वेश्चन 3 हियर. देखो क्वेश्चन 3 क्या है. Again 5, then 12, then 23, then 50, then 141. Now what I can say in one go is that series is like not increase तो कर रहा है but not increasing very fast, right? मतलब कुछ multiply नहीं हो रहा होगा. like देखो ये into 2 के आसपास है, तो ये into 2 से कम ही हो गया, है ना. फिर ये into 2 के आसपास रह गया, तो बहुत फास्ट नहीं जा रहा है सीरीज, राइट. तो what I can do in such cases I can go by difference. हम यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं और डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे. देखो यहाँ आपका डिफरेंस क्या है, 7 है. यहाँ आपका डिफरेंस 11 है. ये डिफरेंस इज 27, ये डिफरेंस इज 91, राइट. अब जब डिफरेंस देखते हो सीरीज का ना, तो कभी क्या होता है ना, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर. तो नॉट नेसेसरली इन द फर्स्ट ऑर्डर यू गेट सम पैटर्न. सो व्हेन यू आर फाइंडिंग डिफरेंस कैन जस्ट मूव टू नेक्स्ट ऑर्डर ऑल्सो. मतलब आप सेकेंड ऑर्डर पे मूव कर जाओ, ठीक है. तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब है कि देखो व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस हियर. सो हियर द डिफरेंस इज लाइक 4, हियर डिफरेंस इज 16 and here difference is 64. You can see the pattern now in second order कि ये क्या चल रहा था. ये 4 into 4 is 16, 16 into 4 is 64. Then the next one should be 64 into 4. So 64 into 4 should be 256. और यहाँ पे 256 का डिफरेंस लाने के लिए 91 plus 256. तो 91 plus 246 is 347. तो यहाँ पे जो भी नंबर था ना, यहाँ से यहाँ आपका 347 का डिफरेंस होना चाहिए. Notice 347 here. If you add here 141 plus 347, you'll get the value as 488. That means 488 was the correct answer here, है ना. तो यहाँ पे क्या लर्निंग थी कि जब भी अब अगर आप कहीं डिफरेंस ले रहे हो तो डोंट स्टॉप एट फर्स्ट ऑर्डर ओनली. ये नहीं कि पहले ही ऑर्डर में रुक गए और हमें पक्का आंसर मिल जाएगा. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट. सो डोंट स्टॉप एट फर्स्ट ऑर्डर. अगर नहीं मिला है तो मूव टू सेकंड ऑर्डर ऑल्सो एंड देन मूव टू थर्ड ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है. तो यू कैन जस्ट ट्राई फॉर 2-3 ऑर्डर्स हियर. ये एक पैटर्न होता है आपका नंबर सीरीज में. ओके, डिफरेंस इन ऑर्डर्स. तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे. अगेन वन टाइप ऑफ पैटर्न इज डिफरेंस इन ऑर्डर इन डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है. ये भी एक पैटर्न होता है नंबर सीरीज का, राइट. तो देखो अगर यहाँ 488 होता तो परफेक्टली फाइन था. यहाँ पे 347 होता और यहाँ पे 256 होता, करेक्ट. तो दैट वाज परफेक्टली फाइन हियर, ठीक है. नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट वन हियर. नाउ ऑब्जर्व करो आप. लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन हियर. इट इज 635, 143, 323, 667. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अगेन यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव तो है, मतलब सीरीज इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, राइट. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व लाइक 35, 143, 323, 667, बट नहीं ये सारा आपका बहुत हैवी मल्टीप्लिकेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देखोगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक हार्डली 2 times, ठीक है. ये तुम्हारा क्या है, इंटू 2 समथिंग लाइक दैट, राइट. बट ना देखोगे तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है. इफ यू ट्राइड सम मल्टीप्लिकेशन, 323 इंटू 2 is 646 प्लस 21 into 2 is 143 into 2 is 286 plus 37, ठीक है. तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है. 35 into 2 is 170 plus 73, तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा अगेन. सो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा, राइट. लेट्स थिंक समथिंग एल्स हियर. सो इफ यू ऑब्जर्व कि भाई ये 6 क्या है,
ओके मतलब मल्टीप्लाई सोच सकते हैं मल्टीप्लाई में, या नॉर्मली भी 6 क्या है, तो मैं सोचूंगा 6 इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 into 3 एक्चुअली। 6 क्या है, 2 into 3 है। ओके फिर सोचोगे 35 क्या है, 35 व्हाट इज 35, इट इज 5 into 7 है ना। 35 क्या है, 5 into 7 है, 5 into 7। ओके गुड, मतलब कुछ समझ में आया क्या हो रहा है ये, कि ये 2 into 3 मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ। व्हाट आर दीज आर प्राइम नंबर्स हियर। तो देखते हैं आगे सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देन 2 3 द प्राइम नंबर आफ्टर 2 3 5 and 7, द नेक्स्ट प्राइम नंबर्स आर 11 and 13, दैट मीन दिस शुड बी 11 into 13, तो हाँ है यार 143 है। द नेक्स्ट प्राइम नंबर्स आर 17 and 19, 17 into 19 is 323, हाँ यार ये भी है, सही है। द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 23 and 29, so 23 into 29 is 667, ये भी सही बात है, राइट। इट इज 23 into 29, that means the last one should be 31 into 37, right? Notice 31 into 37, 37 into 3 is 30 is 1110, plus 37 is 1147, so 1147 should be the answer for this question. Okay, तो ऐसे भी ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि एक है प्राइम नंबर का पेयर्स में मल्टीप्लीकेशन है। ओके सो दैट इज अगेन वन गुड वे टू आइडेंटिफाई इट। ओके चलो लेट्स डू नेक्स्ट वन नाउ। देखो 5 में आते हैं ना, इट इज लाइक 31 38 50 65 81 96 चल रहा है। ओके तो अगेन यू कैन सी दैट कि यहाँ पे डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं, सीरीज इज नॉट इंक्रीजिंग दैट फास्ट। डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, हियर डिफरेंस इज 7, हियर डिफरेंस इज 12, हियर डिफरेंस इज 15, हियर डिफरेंस 16, लाइक दैट ये चल रहा है। नाउ ट्राई ट्राई टू ऑब्जर्व कि भाई ये क्या है, एंड हियर इट इज 15 ऑल्सो, राइट। तो आप बोलोगे सर आप सेकेंड ऑर्डर में लेके देखो, है ना, चल लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 था, 3 था, 1 था, या तो -1 हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे और क्या होता है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 कम होता जा रहा है। दैट बेसिकली मीन्स व्हाट, कि डिफरेंस इन मल्टीपल ऑर्डर चेक कर रहे हैं हम, तो ये 2 2 मिल गया हमें, तो यहाँ पे भी आपका 2 मिलना चाहिए था। अगर यहाँ पे 2 मिले तो यहाँ पे -3 मिलना चाहिए था, है ना। यहाँ अगर -3 मिले तो 15 - 3 यहाँ पे आपको 12 मिलना चाहिए था, और अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस 12 मिले तो यहाँ आपको 108 मिलना चाहिए था। बोलो इजंट इट। हाँ तो दैट्स द पैटर्न गोइंग ऑन, राइट। हाँ तो व्हाट इज जस्ट ऑब्जर्व्ड हियर कि ये 5 3 -1 आपका थर्ड या आपका फर्स्ट ऑर्डर है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ओके, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, एंड दिस इज थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर में जाके डिफरेंस इक्वल हुआ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे डिफरेंस 2 आना था, तो ऊपर से ऐसे आपका ये डिफरेंस 2 2 2 आ रहा था, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 कैसे आता, अगर यहाँ -3 रहता तो डिफरेंस 2 का आता ना, डिक्रीजिंग है। देखो 5 से 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3 होता। अब यहाँ पे आपका डिफरेंस ये -1 क्यों आया था, क्योंकि 16 से 15 था। आपको -3 चाहिए, कैसे आएगा, जब 15 से 12 आएगा। ये 12 का डिफरेंस कैसे आएगा यार, जब आपका ये 96 से क्या आएगा, आपका 108 आएगा। तो दैट मीन्स 108 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके एंड इन मल्टीपल ऑर्डर में आपको डिफरेंस देखना पड़ता है, तो डिफरेंस इन मल्टीपल ऑर्डर इज अगेन द की इन दिस क्वेश्चन ये। ओके फाइन देखो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन नाउ। ओके नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन हियर, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इट सेज 12 है, 35 है, 124 है, 363 है, 722 है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर हियर दे आर आस्किंग हियर। तो अगेन इफ आई गो विद डायरेक्टली, आपको दी जाए कि कुछ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, नथिंग गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, ओके, क्योंकि सीरीज इज नॉट इंक्रीजिंग दैट फास्ट। तो डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक डिफरेंस इज 23 ईयर, ओके, डिफरेंस 89 ईयर, देन इट इज समथिंग लाइक 239 ईयर, एंड इट समथिंग लाइक आई थिंक 359 ईयर। बहुत डिफरेंस है ये तो। और एक ऑर्डर में लेके देखते हैं, ये 66 हो गया, ये 150 हो गया, ठीक है, एंड ये आपका 120 हो गया। अगेन यू कैन सी दैट डिफरेंस भी कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपका नंबर 66 है, 150 है, 120 है, ये भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ पैटर्न नहीं मिलेगा, नहीं नंबर बढ़ते बढ़ते घट भी गया। तो अगेन इट इज वी नॉट एबल टू फाइंड सम एनी पैटर्न हियर लाइक दिस। ओके तो अब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कहने का मतलब ये है कि अब इस जब ये व्हेन दिस नॉर्मल थिंग्स डजंट स्ट्राइक इन नंबर सिस्टम, ठीक है, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और बेसिकली क्या है,
कैन यू थिंक समवेयर अराउंड लाइक, अब प्राइम नंबर सोच सकते हैं इसके अलावा, है ना. नॉर्मली इन नंबर सीरीज वी थिंक ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हियर, वो भी सोचते हैं. ओके, या तो हम बहुत नंबर्स को लास्ट में चेक करते हैं. ठीक है, कभी काफ़ी बार ना ये भी आता है कभी से कि आप ना कभी लास्ट से भी चेक किया करो. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में से यहाँ पे नंबर से स्मॉल है, राइट. देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हियर कि 12 से 35 आना है. ओके, तो देयर कैन बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन मल्टीप्लाई लाइक इंटू 3 - 1 इंटू 2 + 7 लाइक दैट, राइट. तो थोड़ा सा नंबर्स बड़े होते हैं वहाँ पे ट्राई करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लास्ट में ट्राई करोगे 3632722, व्हाट विल हैपन हियर, मुझे क्या लगेगा कि 363 इंटू 2 इज 726. ये तो इनका डबल के क्लोज आता है ना. तो इट्स लाइक इंटू 2 -4 हो रहा है यहाँ पे. इट इज इंटू 2 -4. अच्छा ठीक है, देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. अगर 124 से आएंगे 363 पे, तो ये क्या हो रहा है, तो 124 इंटू 3 इज 372, राइट. तो अब लोग यहाँ पे इंटू 3 -9 हो रहा है. फाइंडिंग सम पैटर्न, राइट. ओके, सो अब बोलोगे 35 से अगर 124 आना है तो 35 इंटू कितने टाइम जाएगा, अराउंड 4 टाइम जाएगा, है ना. ऐसे भी देखोगे तो इंटू 2 हो गया आपका, इंटू 3 एंड नेक्स्ट भी इंटू 4. तो 35 इंटू 4 इज 140 -16. समझो क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका इंटू 2 -2 स्क्वायर, इंटू 3 -3 स्क्वायर, इंटू 4 -4 स्क्वायर. दिस शुड बी इंटू 5 -5 स्क्वायर. ये चल रहा है ना. देखो 12 5 60 -5 स्क्वायर 35. तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए यार, नेक्स्ट शुड बी 5 4 3 2 1. इट शुड बी इंटू 1, हाँ, -1. ओके, सो इंटू 1 -1 शुड बी द आंसर. तभी सही होगा ना, इंटू 1 -1 स्क्वायर, राइट. सो इंटू 1 -1, तो 721 इंटू 1 इज 722 इंटू 1 इज 722 -1 इज 721. So 721 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सॉल्व इट. ठीक है, चलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो यार, इस सीरीज को. थैंक यू. And also, those of you who are preparing for CAT 23, guys, we have a scholarship test coming up on December 18 from 12 p.m. to 1 p.m. So it's a kind of a moderate, tricky level kind of test actually. बहुत डीप कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं होंगे यहाँ पे, बट हाँ मज़ा आएगा टेस्ट देकर. कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें. सो दोज ऑफ यू हु वांट टू अवेल स्कॉलरशिप फॉर CAT 23 courses, you can give this test on December 18 at 12 p.m. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में. ओके, थैंक यू.